Good morning, students. Now today I am discuss preparation of the aldehyde. Now before lecture I discuss of the preparation of the aldehyde and ketone, but today I am discuss only prepared of the aldehyde. Preparation of aldehyde. Aldehyde only. Okay. Now before lecture are prepared, both are them aldehyde and ketone, but today I am discuss only preparation of aldehyde. Number one, from gem dihalide. From gem dihalide. Okay, from gem dihalide. Gem dihalide, also known as one carbon atom attachments of the two halide group of attach. One carbon atoms attach one carbon atom attach of the two halide group. Halide like chloride, bromide, and iodide. CS3 and H. Okay, CS3 CCl2. Yeah, if known as CS3CHCl2. This is called the Zem dichloride. Zem dichloride. Okay, are reduced of the chlorides and the bromide and iodide. This react for BaCl2, barium chloride, or potassium hydroxide. Very good morning, beta. Potassium hydroxide, barium chloride or potassium hydroxide. Potassium hydroxide are hydrolyzed by reaction. The same reaction are completely okay. The reduce of the barium chloride, no, barium हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड नो क्लोराइड बिकॉज द सेम रिएक्टेंट्स आर द नॉट रिएक्टिविटी बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस ओके BaOH का होल ट्वाइस like potassium hydroxide to twice KOH. Twice KOH reduce of the twice KCl and add of the two hydroxyl group of substitutes for chloride. क्लोराइड सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोक्साइड को ओके इफ द बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द बेरियम क्लोराइड BaCl2 okay and two hydroxyl group substitutes of the chloride group ये फार्मूला आपका बन जाएगा CH3CH यहां भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा और यहां भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा ओके हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द क्लोराइड ग्रुप नाउ it is unstable compound so further reduce of the H2O molecules ये H2O molecules को क्या करेगा रिड्यूस कर देगा H2O molecules and form CH3 CH H2O remove so double bond is oxygen this is called the acetaldehyde okay if the potassium hydroxide react with 2 mole of the potassium hydroxide and reduce of the potassium chloride and form this product unstable product are reduced of the H2O then form acetaldehyde
ओके, सिंपल रिएक्शन है फ्रॉम जेम डाई हैलाइड. नाउ सेकेंड, from acyl chloride, from acyl chloride. Number second, from acyl chloride. Okay, from acyl chloride. Acyl chloride, the journal formula are CH3COCl. Acyl group and add up the chloride, it is called acyl chloride. Acyl chlorides are react with hydrogen with barium sulfate and platinum. Barium sulfate and platinum. Okay. When the acyl chloride react with the hydrogen with barium sulfate or platinum, so substitutes of the hydrogen chloride, ये माइनस HCl, हाइड्रोजन यहाँ से और क्लोराइड यहाँ से, वन हाइड्रोजन यहीं पर आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा C, दैट इज कॉल्ड एस्टल्डिहाइड. ओके स्टूडेंट्स, द सिंपल रिएक्शन है फ्रॉम एसिल क्लोराइड. If the aryl chloride, so aromatic aldehyde are formed. Our reaction is C double bond O and Cl. Acyl chloride and aryl chloride. Okay. Now same reaction H2 and same catalyst platinum or barium sulfate. This is reductive product. Reductive products are one hydrogen substitutes of this product and HCl is reduced and one hydrogen of substitute in chloride. So benzaldehyde are also formed. CHO like that structure of the double bond O and H. This is called the benzaldehyde. 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 Because the preparation of the aldehyde only two from acyl chloride. Acyl chloride are also produced aromatic aldehyde and aliphatic aldehyde. ये दोनों सेम कैटलिस्ट रहेगी बेटा. ओके, रिएक्शन समझ में आ गई होगी. वेरी गुड. Now third, from reduction of alkyl cyanide. Third, from reduction of alkyl cyanide. Alkyl cyanide are also known as nitriles. Okay. Now reaction starts when methyl group one carbon attachments of the CN group. This is called methyl cyanide. Are reduced for hydrogen with
stannous chloride or dry ether. It's like symbol of dry ether. So one hydrogen add of the one nitrogen and one hydrogen add of the carbon atom. Break the bond, triple bond to form of the double bond. So it is called CS3 single bond C. This is called triple bond and this is double bond. One hydrogen add of the this carbon atom, okay, and one hydrogen add of the nitrogen atom. ठीक है, अनस्टेबल रिएक्शन हुआ ये। अनस्टेबल रिएक्शन में जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, ठीक है, फर्दर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस H2O or HOH reaction, okay, hydrolysis. So two hydrogen, one and two hydrogen are add of nitrogen atoms, यहाँ ये, so reduce of the ammonia, one nitrogen and one hydrogen, two hydrogen are also add of this position, so it is called the NH already present and two hydrogen present, this is called the ammonia, NH3, okay. And last product form this oxygen are a double bond, so it is called CS3 CHO or C double bond O, and as this is called the acetaldehyde. Acetaldehyde, okay. Now same process, form of the aromatic aldehyde, acetic, methyl are reduced from the phenyl group. ओके, हो गया, रिएक्शन कर रहे हैं साथ में। देखिए इसी रिएक्शन को फिर से हम करते हैं, बस इस मैथिल की जगह पर क्या हो जाएगा, फेनिल ग्रुप आ जाएगा, तो एरोमेटिक यानी बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, उसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। और आपको वो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, ओके। देखिए फिर से रिएक्शन देख लीजिए, आपका रिएक्टेंट सेम रहेगा, हाइड्रोलिसिस सेम होगी, रिडक्शन सेम होगा, बट ओनली डिफरेंस होगा मैथिल ग्रुप की जगह पर आपका क्या रहेगा, फेनिल ग्रुप। लाइक दिस स्ट्रक्चर, फेनिल साइनाइड, ये फेनिल से क्या होगा, यहां पर साइनो ग्रुप अटैचमेंट होगा ये, ठीक है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड रहेगा C6H5Cl। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हाइड्रोजन, जितनी जरूरत होगी उतना हाइड्रोजन हम रिडक्स करेंगे, तो सेम कैटलिस्ट रहेगा, स्टेनस क्लोराइड और ईथर, okay, one hydrogen at this position and one hydrogen at this position, so reaction are produced CH double bond NH, okay. Now hydrolysis HOH, same process, two hydrogen add up the nitrogen 2 electron, so form NH3, and one oxygen add up this position, CH double bond O, this is called aromatic aldehyde or benzaldehyde, okay. Very simple reaction from reduction of alkyl cyanide or nitrile. ओके स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है तीनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। यस,
सिंबल नहीं है बेटा, अभी मैं समझा रहा हूँ। तो क्लीवेज ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, जब क्लीवेज हो रहा है तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन से अपना दो हाइड्रोजन ऐड कर लिया और इसने अपना ऑक्सीजन ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये क्या था, अब पहले डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड क्या हुआ, अपने अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्लीवेज हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया देखो, और इस नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गया, तो ये अमोनिया बना लिया और ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, जब भी ऐसे बांड कर रहा है तो मतलब क्लीवेज कर रहा है, बाकी ये इक्वल नॉट है। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ, साइनाइड, किसमें साइनाइड में ट्रिपल बॉन्डिंग? ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ये है तो ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे ही इसने क्या किया, रिडक्शन किया, रिडक्शन करने के बाद हाइड्रोजन ऐड करेगा तो डबल बॉन्ड में आ जाएगा, क्योंकि वन हाइड्रोजन ऐड उधर हो जाएगा, वन हाइड्रोजन ऐड इधर हो जाएगा। फिर जैसे ये फर्दर हाइड्रोलिसिस करेगा, हाइड्रोलिसिस करने पर जब यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये नाइट्रोजन जो था ऑलरेडी पहले से इसके पास एक एच था, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो इसके पास है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। यहाँ बैलेंस खाली हो गया तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन से आकर यहाँ पर जुड़ के बेंजल्डिहाइड बना लिया। कहां पर बोल रहे थे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ? पहले वाले में ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, साइनाइड ग्रुप है तो प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ फोर्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडेशन। Okay, aromatic hydrocarbon means one phenyl group attachments of the carbon group attachments, like that toluene, this is called toluene। इसको टॉलवीन आप बहुत बार देख चुके हैं, इसको क्या है ये, टॉलवीन। ठीक है, टॉलवीन also oxidized by potassium permanganate, potassium permanganate through reduce of water molecules and form benzaldehyde। The carbon atom presence in the 3 hydrogen, it is called the methyl oxygen, one oxygen attachments of 2 hydrogen, so reduce from the H2O molecules and one oxygen add of this position, this is called benzaldehyde। ओके, दो ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन H2O रिमूव कर देगा, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। चाहे हम इसको इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, सेम प्रोसेस है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, आपका खाली हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, दिस इज कॉल्ड द बेंजल्डिहाइड। एकदम सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, जनरली आपको जब बुक में दिया रहेगा तो टॉलवीन आल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड आल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय benzoic acid, because the one oxygen add of this position and same catalyst KMnO4 and form of benzoic acid COOH, one oxygen up also add and last product are the benzoic acid, benzaldehyde and benzoic acid, because some time of the produced from the benzaldehyde, but also nature presence in the oxygen and add of the one oxygen add presence of the potassium permanganate, so form of the benzoic acid, the last product is form of the benzoic acid from the toluene।
ओके, एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि बेंजिल्डिहाइड सर प्रिपेयर्ड करना था, बट यहाँ पर बेंजोइक एसिड क्यों आपने प्रिपेयर्ड कर दिया? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड भी होता है और सम टाइम्स के लिए ऑक्सीडाइज्ड होता है। नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तुरंत एब्जॉर्ब करके बेंजोइक एसिड फॉर्म कर देती है। फिल इन द ब्लैंक्स में आता भी है, तो इसके बाद ये बना रहता है, आपको कर देना होगा कि यहाँ पर बेंजोइक लास्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा। बेटा अब मैं एक बार बता चुका हूं, जेम हैलाइड का मतलब क्या होगा आप पूछ रहे हो। जब किसी कार्बन चेन में लगे हुए कार्बन से, एक ही कार्बन से दो हैलाइड ग्रुप जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, आप इसको अच्छे समझ लीजिए। इस रिएक्शन करने के बाद मान लेते हैं ये हमारी कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन में यदि वन कार्बन एटम से टू हैलाइड कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, या चेन और इंक्रीज होती जाती, तो दिस पोजीशन को कहते हैं जेम डाई हैलाइड। ओके, अगर यही क्लोराइड यहाँ पे ना जुड़ के, आपको मैं अच्छे से इसको बता दे रहा हूँ, इसको हटा के 1 मिनट, जिनको नहीं समझ में आया बार बार मैसेज कर रहे हैं, 1 मिनट देख लीजिए। जब आप आइसोमेरिज में पढ़े थे, तो आइसोमेरिज में आपने पढ़ा था द सेम जनरल फार्मूला लाइक दिस स्ट्रक्चर, CH3 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 Cl Cl H। ठीक है, अब इसको हम अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो C2H4Cl2। ओके, इसका टू स्ट्रक्चर आइसोमर बना था। एक को बोला था आपने जेम और एक को बोला था आपने विस डाइहैलाइड्स रिप्रेजेंटेड ऑफ द, ये the general formula are same but arrangements are the difference. One chloro group attachments of the one carbon atom, different carbon atom attachments of the halide group, it is called vis dihalide। ये आपका क्या कहलाता है? विस डाइहैलाइड। ये कहलाता है जेम डाइहैलाइड। ठीक है, ये विस डाइहैलाइड, ये जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड सेम कार्बन पर दो हैलाइड ग्रुप जुड़े होंगे, और विस डाइहैलाइड में अलग अलग कार्बन पर हैलाइड ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, okay student, now next now next reaction, the important reaction, Gotterman Koch reaction। Gotterman Koch reaction बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में है। Gotterman Koch reaction, this is a very simple example। Benzene react with the Gotterman reaction, benzene are derivative convert of the benzaldehyde, substituted aldehyde treated with the carbon monoxide, when the benzene react with carbon monoxide, okay, carbon monoxide, not cobalt, carbon monoxide react with एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, आपके ऊपरी क्लोराइड Cu2Cl2, this is catalyst and one hydrogen presence in this position। okay, all positions are presence of the one hydrogen group, first hydrogen group add of the CO group, CO ऐड हो गया आपका, तो CHO इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। एकदम सिंपल रिएक्शन है ये। ठीक है, इसके बाद राइमर टाइमर हम देखेंगे, तो उसमें भी आपको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, राइमर टाइमर आप देख चुके हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। देखिए, गाटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन रिएक्ट विद द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द एल्युमिनियम क्लोराइड आर क्यूप्रिक क्लोराइड।
ओके। यहाँ विद द एसिडिक मीडियम हो सकता है, एसिडिक की जगह पर आप HCl लिख सकते हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा और यहाँ का क्या होगा, हाइड्रोजन कुछ समय के लिए रिप्लेस होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड में पॉजिटिव निगेटिव दोनों बॉन्ड होता है, वही बॉन्ड जाकर ऐड कर लेगा एक तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। देखिए ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड O है, एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। अब ये वाला रिएक्शन जैसे इसमें जाएगा इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और ये निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ले लेता है यहाँ पर कार्बन अटैचमेंट हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आकर इधर जैसे अटैचमेंट होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये निगेटिव के लिए ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, ये हट के यहाँ पर ये H फॉर्म में आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन खाली होकर यहाँ पर बेंजीन रिंग ऐड हो जाती है, तो CHO ग्रुप यानी बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसकी मैकेनिज्म देखें कि यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, निगेटिव फॉर्म में जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसके बाद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ द ऑक्सीजन, अटैचमेंट्स ऑफ द कार्बन एटम देन बेंजीन रिंग। ओके। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, राइमर। राइमर टाइमर कई बार आप पढ़ चुके हैं। ओके। राइमर टाइमर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है। फिनोलिक एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन बाय treating the phenol and chloroform and aqueous sodium hydroxide solution at 343 Kelvin. At 343 Kelvin. ठीक है। This reaction are called Reimer triode. When the phenol, ये रिएक्शन हम फिनॉल में अच्छे से देख चुके हैं। फिनॉल, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH। ओके। फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है, CHCl3। इसकी प्रेजेंस में अभी मैंने बताया आपको बेस की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है। एट 343 केल्विन, इस केल्विन पर ये अटैचमेंट करता है और सोडियम ग्रुप जो होता है वो अटैच होकर यहाँ पर आ जाता है और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, तो H2O रिमूव कर जाता है और यहाँ पर एक कंपोनेंट्स बनता है ONA। ओके। एक्टिव पोजीशन के लिए ये हो जाता है ONA और 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है। 1 हाइड्रोजन, अब देखिए यहाँ पर क्या, 1 हाइड्रोजन यहाँ का रिप्लेस होगा और इसका 1 क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, यानी -HCl। HCl रिमूव हुआ और H2O ऊपर वाले से रिमूव हुआ। ठीक है। अब HCl, तो यहाँ पर क्या बना, CHCl2, तो आप चाहे ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पर CH, ये सिंगल बॉन्ड करके Cl2। इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है, बुक में डायरेक्ट दिया रहता है बट आपको मैं समझा रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। CHCl2, 1H चला गया, 1H और Cl चला गया, यहाँ पर जब जो Cl3 था बचा Cl2, तो CHCl2, ये CHCl2 यहाँ पर जाके क्या हुआ, ऐड हो गया। अब आपको मालूम हो गया होगा कि इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, H लगाना पड़ेगा, H। ठीक है। जितने H की जरूरत होगी, जैसे हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस किसके साथ होती है, HOH के साथ होती है, तो ये 2O हो जाएगा, H2O है ये हाइड्रोलिसिस मींस। हाइड्रोलिसिस जैसे करेंगे यहाँ से क्या होगा, ये HCl रिमूव हो जाएगा, -2 HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और ये ऑक्सीजन यहीं पर आकर ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये HCl क्या होगा, रिमूव होगा और ये सेम कंडीशन पे CHO ग्रुप बना देगा। ये ONA है ही है, अभी इसको बाद में हम रिप्लेस कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। C है, देखिए ये H नीचे की ओर है, यहाँ डबल बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पर ये क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका सेम पोजीशन पे। अब HCl के साथ इसको रिएक्शन करके NaCl रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा।
ठीक है, HCl से रिएक्शन करा देते हैं, NaCl रिमूव हो जाएगा, NaCl ये अब ये H आकर ऊपर आ जाएगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, OH ऑलरेडी हो गया प्रेजेंस, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, CHO, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, डाइमर डाइमर रिएक्शन फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, टाइमर टाइमर रिएक्शन कई बार आप देख चुके हो बुक में या किसी भी बुक में, डायरेक्ट ये दिया रहता है फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। आप बोल सकते हो यहाँ पर सर OH हटा, फिर आपने OH हटाया और फिर आ गया एसिडिक मीडियम करने के लिए हमको वहां पर एक्टिव पोजीशन के लिए सोडियम लाना पड़ता है। कभी कभी डायरेक्ट बच्चे कर देते हैं, यहाँ पर OH हटाकर इस H को केवल रिप्लेस करते हैं और CHO ग्रुप आ जाता है। ये आपकी मैकेनिज्म भी हो जाती है आपकी, और यहाँ पर ये सिंपल रिएक्शन कैसे फॉर्म हुआ वो हो जाता है। ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली आपका 6 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो 6 रिएक्शन है वो सभी आपको कंप्लीट हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम है क्या इस रिएक्शन में, देख लीजिए। वाटरमैन कोच रिएक्शन एंड